One. Namaste. Welcome to day 28 of online storytelling series. I hope you enjoyed the story yesterday, Power Cut, and you must have done some shadow play with your parents also. Today, I have another story for you. But children, all this while, I was reading story for you. Today, I am going to do the storytelling. Are you excited about it? Yes, but before we begin our story, let's talk about something. Tell me how you make sense of the world around you. There are different things around you. So how do you know that there are different things around you? You see them. Yes, you look at them and then you figure out, oh, that's a table. Oh, that's a TV, right? And how do you make sense if your mummy is cooking something in the kitchen? You get the smell of it. Yes. And when mummy is done with the cooking, what you do? You taste it and you figure out what it is. It's so yummy. It's so tasty, right? And there are different sounds around you. So you hear the sound and then you make out, oh, that's the bird. Oh, that's somebody calling me, right? So this is how we make sense of things around us, right? Today, our story is related to senses. So listen to the story carefully. But before that, we are forgetting something. What's that? Yes, that's song. Let's do the song and then I will do the storytelling for you. And in this song, I'm not going to tell you the name of the animal. You have to figure it out, right? इस गाने में मैं उस जानवर का नाम नहीं लूंगी. आपको खुद को पता लगाना है कि ये कौन सा जानवर है. So आओ ये गीत गाते हैं. इस जानवर का मोटा है पेट, मोटा है पेट, पेट हिलाता वो तो चला देखो सैर पर, पेट हिलाता वो तो चला देखो सैर पर. इस जानवर की लंबी है पूंछ, लंबी है पूंछ, पूंछ हिलाता वो तो चला देखो सैर पर, पूंछ हिलाता वो तो चला देखो सैर पर. इस जानवर की लंबी है टांग, लंबी है टांग, टांग हिलाता वो तो चला देखो सैर पर, टांग हिलाता वो तो चला देखो सैर पर. इस जानवर के नुकीले दांत, नुकीले दांत, दांत हिलाता वो तो चला देखो सैर पर, दांत हिलाता वो तो चला देखो सैर पर. इस जानवर के लंबे दो कान, लंबे दो कान, कान हिलाता वो तो चला देखो सैर पर, कान हिलाता वो तो चला देखो सैर पर. इस जानवर की लंबी है सूंड, लंबी है सूंड, सूंड हिलाता वो तो चला देखो सैर पर, सूंड हिलाता वो तो चला देखो सैर पर. इटलाता बल खाता चला देखो सैर पर. सो कौन सा जानवर था ये? Elephant. Yes. Our story is not on elephant, but there is elephant in this story. Yes. We are going to listen to the story in which there is one elephant. But before we move there, I will do one magical portly. I got a gift bag. And the person who gave me this gift bag said you can't open it and see. You have to close your eyes and then take one thing out at a time and tell what it is. Only then these things can be yours. Is this a plug?
things are mine. Sharpener. Dice. Keychain. Clutcher. Cup. I want all these things. I'm going to try. Earring. No, it's thick. What it is? It's moving. Lock. Last thing. Paper clip. Right? All these things are right? No, all these things belong to me. Da, 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 da. What did I do, children? I didn't look at them. Really, I didn't look at them. Someone else packed this bag for me and gave it to me, and I didn't look at them through touch. I made sense that, okay, this thing could be clutcher or cup or plug, right? So our story is something related to what I did just now. Let's listen to this story now. तो आओ सुनते हैं कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में 6 अंधे लोग रहते थे और वो 6 लोग साथ में रहते थे। वो देख तो नहीं सकते थे, पर वो अपने बाकी सेंसेस से सब कुछ पता लगा लेते थे और उन्होंने अपने बाकी सेंसेस से दुनिया को बहुत देखा था और बहुत सारी नई चीजें भी सीखी थी। वो बांसुरी की आवाज सुनते ही पता लगा लेते थे कि कितना मधुर संगीत बज रहा है और रेशम की मखमल को छूते ही उन्हें पता चलता था कि कितनी मुलायम है, रेशम कितनी मुलायम है। और जब उनकी अम्मी खाना पकाती थी तब उन्हें पता चल जाता था कि आज घर में क्या बन रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू जो उन्हें आती थी। और जब वो खाना खाने बैठते थे तब कैसे करते थे? मसाले को चाट चाट के पता लगा लेते थे कि आज अम्मी ने क्या बनाया है। एक बार गांव में खबर फैली कि राजकुमार ने एक नया हाथी लिया है। ये सुनके तो 6 लोगों के मन बहुत खुश हो गए। उन्होंने हाथी के बारे में सुना तो बहुत था, पर कभी हाथी को ऐसे छूकर देखा नहीं था। उनका बहुत मन था ये जानने के लिए कि आखिर हाथी होता कैसा है। 6 लोग बैठे, उन्होंने बातचीत की और ये निर्णय लिया कि हम चलते हैं राजकुमार के घर और जानते हैं आखिर हाथी होता कैसा है। 6 लोगों ने अपना बैग पैक किया, बैग उठाया और चल दिए राजकुमार के घर। लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। और उनमें से एक अंधा आदमी गीत गाता हुआ चला, हाथी आया देखो हाथी आया, हाथी आया। और जितने भी लोग पास में से निकलते जा रहे थे वो देख रहे थे 6 लोग कहाँ जा रहे हैं ऐसे गाना गाते हुए, हाथी आया देखो हाथी आया, हाथी आया। राजकुमार का घर बहुत दूर था। चलते चलते 6 लोग बहुत थक गए थे और अब उन्हें बहुत प्यास लगने लगी थी, पर हाथी से मिलने के लिए इतने उत्सुक थे कि वो कहीं भी नहीं रुके और चलते रहे और जाके राजकुमार के दरवाजे के बाहर जाके रुक गए 6 लोग। और इतने में राजकुमार के घर का गार्ड बाहर निकला और बोला, यहाँ कैसे आए हो?
किस लिए आए हो यहाँ पे? छह लोग बहुत डर गए। राजकुमार के घर में ऐसे कैसे घुसेंगे, क्या बोलेंगे, हाथी देखने आए, जाने देंगे ऐसे अंदर? इतने में एक अंधा आदमी पीछे से बोला, जी हमने सुना है राजकुमार ने हाथी लिया है, हमने ना कभी हाथी देखा नहीं है, कभी छुआ भी नहीं है, हमें हाथी के बारे में जानना है, हमें प्लीज अंदर आने दो। गार्ड ने सुनते ही बोला, अरे हाँ हाँ आओ आओ अंदर आओ, और वो उनको लेकर चल दिया जहां पर हाथी खड़ा था। छह लोग वहां जाके रुक नहीं पाए और बेसब्री से एक एक करके चालू हो गए। सबसे पहले आदमी ने हाथी को छुआ और छूकर बोला, तो सोच रहा है बड़ा मजबूत है, ये तो बहुत चौड़ा है, लगता है ये दीवार है, हाथी एक दीवार है। वो सोच लिया उसने, बस हाथी एक दीवार है। और दूसरे आदमी ने हाथी की लंबी गोल सूंड को छुआ, बोला, सोचा सांप है, ये तो सांप है, हाथी सांप है हाथी। और तीसरे अंधे आदमी ने हाथी के चिकने दांतों को जब छूना चालू किया तो सोचने लगा, ये तो बहुत नुकीले हैं, ये तो लगता है भाल है, हाथी बिल्कुल भाल जैसा है, भाल है हाथी। और चौथे अंधे आदमी ने हाथी की टांगों को छुआ और टांगों को छूते छूते सोचने लगा, ये कितनी लंबी है, कितनी गोल और कठोर है, ये तो बिल्कुल पेड़ जैसा है, हाथी बिल्कुल पेड़ जैसा है। पांचवें अंधे आदमी ने हाथी के कान को जैसे ही छुआ, हाथी ने अपने कान फड़फड़ा दिए। और उस पांचवें आदमी ने सोचा, अरे हाथी तो बिल्कुल पंखे जैसा है, पंखे जैसा, हाँ हाथी बिल्कुल पंखे जैसा है। और अब आखिरी में एक बचा है, वो भी गया हाथी को छूने। उसने क्या छुआ, हाथी की पूंछ, और पूंछ छूकर बोला, ये तो रस्सी है, रस्सी, क्या इतनी दूर चल के आए, रस्सी जैसा है हाथी, रस्सी जैसा। ये सोचने लगा वो भी। और अब छह लोग बैठ गए और छह लोग अपना अनुभव सुनाने लगे। पहले आदमी ने बताना शुरू किया, उसने बोला, मैंने हाथी को छुआ है, मैं बताता हूं हाथी कैसा है। हाथी बहुत ही बड़ा है, बहुत मजबूत और चौड़ा है, बिल्कुल दीवार की तरह, मैंने छुआ है हाथी को, मैंने। इतने में दूसरा बोलता है, दीवार, क्या दीवार, मैंने छुआ है हाथी को, हाथी बिल्कुल सांप की तरह है, दूर रहना, छूना भी मत, सांप की तरह है। और तीसरा आदमी बोला, क्या ये दीवार सांप, मैंने छुआ है हाथी को, वो बिल्कुल ऐसा भाल की तरह है, इतना नुकीला है, मैंने छुआ था हाथी को। चौथा आदमी आके बोला, अरे भाई क्या है ये सब, हाथी जो है वो बहुत ही गोल है, बहुत कठोर है, बिल्कुल पेड़ की तरह है, पेड़ की तरह। अब चारों लोग बैठे, इतने में पांचवा बोल पड़ा, क्या है ये, क्या लगा रखा है, हाथी दीवार है, हाथी सांप है, हाथी ये है, हाथी वो है। मैं बताता हूं, हाथी एक पंखा है, पंखा। जैसे ही मैंने हाथी को छुआ, क्या हवा आई थी, पंखा है हाथी, पंखा। और छठा बोलता है, नहीं, हाथी बस एक रस्सी की तरह है, क्या लगा रखा है ये, पंखा है, दीवार है, ये है, वो है, सांप है, नहीं, हाथी तो एक रस्सी है, बस रस्सी। और छह लोग आपस में इतना लड़ने लगे, बस इसी बात पे लड़ रहे थे कि हाथी है क्या, और यही बात चल रही थी, हाथी तो एक पंखा है, हाथी दीवार है, हाथी सांप है, हाथी भाल है, हाथी पेड़ है, हाथी पंखा, दीवार। इतने में राजकुमार की आंख खुल गई, इतना शोर देखते हुए। और राजकुमार ने खिड़की से देखा कि छह लोग नीचे लड़ रहे हैं। राजकुमार नीचे उतर के आए, खड़े हुए और पूछा,
ये इतना शोर किस बात का लगा रखा है तुम 6 लोगों ने? और वो बोले, राजकुमार जी, हमने हाथी को देखा भी, और हम ना हाथी को देखने आए थे, बस हाथी को देखने आए थे। इतने में 6ठा व्यक्ति जो था वो बोल पड़ा, राजकुमार जी मैं बताता हूं, हम 6 लोग लड़ रहे हैं, हाथी है क्या? ये बोलता है हाथी पेड़ है, वो बोलता है हाथी नुकीला है, भाल है, वो बोलता है हाथी सांप है, ये बोलता है हाथी पंखा है, मैं कैसे बताऊं हाथी क्या है? और राजकुमार ने बोला कि वैसे देखा जाए तो तुम सब सही भी हो और तुम सब गलत भी हो। और वो 6 लोग सोचने लगे, राजकुमार क्या बोल रहा है, सही भी हो गलत भी हो, राजकुमार को क्या हो गया? और इतने में राजकुमार ने अपनी बात बताना शुरू किया। राजकुमार ने बोला, देखो मैं बताता हूं तुम सब सही कैसे हो। हाथी का पेट जो है वो बहुत मजबूत और चौड़ा है, एक दीवार की तरह। हाथी की जो सूंड है वो बहुत गोल और लंबी है, बिल्कुल सांप की तरह। हाथी के जो दांत हैं वो बहुत ही नुकीले और चिकने हैं, बिल्कुल भाल की तरह। और हाथी के जो पैर हैं वो बहुत गोल और कठोर हैं, बिल्कुल पेड़ की तरह। हाथी के जो कान हैं वो बहुत लंबे हैं और बिल्कुल पंखे की तरह हैं। हाथी की जो पूंछ है वो एक रस्सी की तरह है। तो तुम 6 लोग सही तो हो, जो तुमने मुझे बताया वो सही है। जैसा तुमने महसूस किया हाथी बिल्कुल वैसा ही है, पर तुम गलत भी हो, क्योंकि तुम सबने हाथी के सिर्फ एक एक हिस्से को छूकर ही यह पूरा अंदाजा लगा लिया कि हाथी कैसा है। यह जानने के लिए कि हाथी कैसा है तुम्हें पूरे हाथी को छूना होगा और पता लगाना होगा कि हाथी क्या है। 6 लोग बड़े खुश हुए, आपस में बातचीत की और अपने दिमाग में हाथी का इतना सुंदर पिक्चर उन्होंने निकाला और बहुत खुश हो गए। और राजकुमार ने बोला, चलो अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। और राजकुमार ने एक बात बताई कि हाथी अपनी सूंड में पानी भर के हम सबको नहलाता है। क्या तुम भी ये करना चाहोगे? इतनी धूप में तो 6 लोग थके हुए आए ही थे। ये बात सुनकर वो खुश हो गए और हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरा और पश करके 6 लोगों पे पानी फेंक दिया। और 6 लोग इतने खुश हुए और उसके बाद उन 6 लोगों ने राजकुमार के साथ में खाना भी खाया और जब वापस गए तो हाथी को अपनी सलाम कहकर गए। तो ये थी कहानी 6 अंधे और हाथी। यह एक प्राचीन लोक कथा है, ये एक फोक टेल है जिसे अभी हमने सुना। आई होप आपको कहानी पसंद आई हो। अब हम इसी कहानी पे एक एक्टिविटी करते हैं, आओ। So children, we are going to make elephant today using different materials, and each part of the elephant will have different feel because of the material that we are going to use. We are using sand. If you don't find sand, you can use any other substitute. I'm using cloth material, rope. We need sketch color, pencil, scissors, Fevicol and colors. What we will first do, we'll first draw elephant on the blank sheet. So just draw the elephant on the blank sheet. This will be the outline of the elephant. And here I'm making the teeth. So this is the outline of elephant. Now we are going to make different parts using different material. Here I am putting Fevicol and then I will put sand. So this part of the elephant will have completely different texture. So just spread Fevicol here,
So once you apply the Fevicol, you just sprinkle the sand on the body of the elephant like this. And whatever is remaining, we'll just take a newspaper. Once you are done sprinkling, take a newspaper and take out the remaining part which didn't stick to the Fevicol, to the body of the elephant later, right? So this is the body. Now I'm cutting this part. I'm using this material, cloth material, for the ears of the elephant. So I'll just cut this part. I'll draw one outline here also. I'll make one outline here and I will cut it. So I've cut this part as ears of the elephant. I will put Fevicol here and just stick this part to this side of the body. So it will be little above the body, main body. Don't stick this part. Now what we will do, we will stick the tail. Tail I'm sticking using the rope. Cut the rope. How big you want the tail? I think it's too big, it's coming out of the paper. So cut this, and this also stick only top part of it, not the whole rope. Yes. So we use sand for the body, we used cloth for the ears, and we used rope for the tail. Now the remaining parts, I am going to color it, but you can use different material to decorate the remaining part of the elephant. So this is my completed elephant. You can do it differently. If you touch here, it's different texture. If you touch here, it's a different texture. If you touch here, it's a different texture. So this was what we listened in our story today, and this is what our activity was all about. I hope you enjoyed the story and the activity. See you soon tomorrow. Thank you so much.